Okay. With initial values y of 0 equal to y dash of 0 equal to 1, the solution of the differential equation d square y upon dx square plus 4 dy by dx plus 4y equal to 0 at x equal to 1 is what? This question was asked in GATE 2014 for 2 marks, electronics and telecommunication engineering students. So first of all, I'll write given data. It is given that d square y by dx square plus 4 dy by dx plus 4y इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो dy by dx जो है उसे मैं y डबल डैश कह सकता हूँ ऑफ x. dy by dx है, इसको हम कह सकते हैं y डैश ऑफ x. y जो है इसको मैं सीधे कह सकता हूँ y ऑफ x इक्वल टू 0. मैं आपको नोट लिख के देना चाहूंगा, नोट यहां पे लिख के देता हूं. मैंने क्या किया है, नोट मैंने किया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या कह रहा हूं मैं, बोलो y डबल डैश ऑफ x. नेक्स्ट dy बाई डी एक्स को मैं क्या कह रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज y डैश ऑफ x. नेक्स्ट y को हम क्या कह रहे हैं, y ऑफ x. आफ्टर दैट I need to take Laplace transform on both sides. Take Laplace transform on both sides. So Laplace transform of what? Y double dash of x 4 times Laplace transform of y dash of x plus 4 times Laplace transform of y of x equal to Laplace transform 0 is actually 0, so I will keep it as 0 itself. So now let me tell you Laplace transform of y double dash of x is what? It is s square capital Y of s minus s y of 0 minus y dash of 0. This is Laplace transform of y double dash of x. After that, what is Laplace transform of y dash of x? I'll write it for you. Before that, I'll write plus 4 as it is. Now Laplace transform of y dash of x is what? It is s capital Y of s minus y of 0. Okay, what is next? Plus 4. Laplace transform of y of x is what? It is just y of s. The whole thing equal to 0. Now y of 0 value is 1. Y dash of 0 value is also 1. Given y of 0 is 1 and y dash of 0 is also 1. Let me call this as equation 1 and this as equation star. I'll put 1 in equation star. So equation star will now change to what? First of all, s square y of s would remain as it is minus s y of 0. For y of 0 I am going to put simply 1. Y dash of 0 will be replaced by 1. The whole bracket remains as it is. Plus 4 under bracket it is s y of s minus, for y of 0 I am just going to write 1. After that plus 4 into y of s equal to 0. Now let me resolve these terms. I'll underline the terms of y of s. From underlined terms I will take y of s as common. What remains inside the bracket is what? It is s square. This is 4 into s, that is plus 4s. This is just 4. Okay. After that, minus s into 1 is minus s. This is minus 1. 4 into minus 1 is minus 4. And that's it. Equal to
0. Now, minus 4 minus 1 is what? Minus 5. And minus s minus 5 will move to that side. It will become s plus 5. Terms which remain on left side is just capital Y of s multiplied by s square plus 4s plus 4. In next step, what I will do is, I'll take this term in the denominator of the right side. So, I'll get the value of y of s. The value of y of s now becomes s plus 5 divided by s square plus 4s plus 4. Now next, what to do? Y of s remains as it is. In numerator it is s plus 5, and for denominator it is s square plus 4s plus 4. S square plus 4s plus 4 can be rewritten as s plus 2 the whole square. We know a plus b the whole square is what? A square plus 2ab plus b square. Similarly, s plus 2 the whole square is what? S square plus 2 into s, that is 4s, plus 2 square, that is 4. So now this can be further solved by using partial fraction, and then after that we will take inverse Laplace transform on both sides and we will get the value of y of t. So how do we do that? This can be rewritten as a upon s plus 2 plus b upon s plus 2 the whole square. I need to find the value of a and b. For that, I am going to use partial fraction. Let me call this equation as double star and solve the value of a and b by using partial fraction. So, by partial fraction, s plus 5 divided by s plus 2 the whole square is what? A upon s plus 2 plus b upon s plus 2 the whole square. Okay. So after that what? Now I need to find the value of a and b. So s plus 5 as it is, s plus 2 the whole square as it is. Here I need to take LCM. LCM of both is s plus 2 the whole square. यहाँ पर s plus 2 the whole square लाने के लिए a को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? s plus 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. b को कोई ज़रूरत नहीं, ये टर्म कैंसिल हो गए. इसके बाद में क्या करेंगे? नाउ s plus 5 equal to a into s plus 2 plus b. Now I need to find value of a and b. What should I do? First, put s equal to minus 2. s equal to minus 2 पुट करो ऊपर, तो minus 2 plus 5 कितना हो जाता है? minus 2 plus 5 is 3. minus 2 plus 2 is 0. So ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. प्लस b, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 3. अब b का वैल्यू आ गया है. a का वैल्यू निकालने के लिए s की अभी कोई भी वैल्यू ले लो. मान लो हम ले लेते हैं पुट s इक्वल टू 0. कुछ बच्चे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी डालो. पुट s इक्वल टू 0. तो 0 प्लस 5 इज 5. s की वैल्यू 0 डालो. 0 प्लस 2 इज व्हाट? 2 प्लस b, है ना. अब b की वैल्यू पुट कर दो. b की वैल्यू क्या है? 3. 2a प्लस 3 इज 5. 3 वो साइड गया. 5 माइनस 3 इज 2. 2 इज इक्वल टू 2 a. तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1. तो इस तरह से ये a और b की वैल्यू हम स्टार इक्वेशन में, डबल स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 इन डबल स्टार इक्वेशन. तो डबल स्टार इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? y ऑफ s इज इक्वल टू व्हाट? a की जगह पे मैं 1 डालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2. b के जगह पे मैं 3 डालूंगा, 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 द होल स्क्वायर. ये तो आम जिंदगी. इसमें मेंटोस जिंदगी भी है. मेंटोस मेथड क्या कहता है? आसानी से कैसे करें इसको? देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं. y ऑफ s क्या है? s प्लस 5 डिवाइड बाई s प्लस 2
एस प्लस टू द होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, एस प्लस 5 को लिख सकते हो आप एस प्लस टू प्लस 3 डिवाइड बाय एस प्लस टू द होल स्क्वायर। 5 को कैसे लिखा मैंने, 2 प्लस 3 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको एस प्लस टू को एक बार एस प्लस टू द होल स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर 3 को एक बार एस प्लस टू द होल स्क्वायर से डिवाइड करो। एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस टू द होल स्क्वायर क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन एस प्लस टू, और यहाँ पे 3 अपॉन एस प्लस टू द होल स्क्वायर। तो यही रिजल्ट हमें आसानी से मिल जाता है विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो एग्जाम में आपका दिमाग जिस डायरेक्शन में काम करे, उस डायरेक्शन में आपको सही लगे, उस डायरेक्शन में आप जा सकते हो, लेकिन ये एक आसान तरीका भी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नाउ टेक इनवर्स Laplace transform on both sides। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू द होल स्क्वायर। ओके, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s इज y ऑफ t, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू इज व्हाट, e रेज टू माइनस 2t, 3 एज इट इज। 1 अपॉन एस प्लस टू द होल स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस प्लस टू को रिप्लेस किया जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर से, इसको एस प्लस टू को एस 1 अपॉन एस स्क्वायर से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई रेज टू माइनस 2t से। अब 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, बोलो, इट इज t रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इट इज एक्चुअली t रेज टू, ये 2 जो है 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। ओके, तो आंसर क्या आ गया, e रेज टू माइनस 2 थ्रू आउट 2t, थ्रू आउट कॉमन ले लो, इधर कौन बचेगा 1, इधर कौन बचेगा 3, t रेज टू 1 t रहता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, 1 प्लस 3t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ t, बट आई डोंट वांट y ऑफ t, I want value at x equal to 0. So at x equal to 0, sorry, not x equal to 0, at x equal to 1, I'll put value of t as 1. Okay, okay, wait a minute, let me make some changes for you. Okay, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s, y ऑफ t नहीं लिख सकते हम, y ऑफ t के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, y ऑफ x लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो क्वेश्चन में यूज किया गया है वो x है, नॉट t। तो यहाँ पे भी t को रिप्लेस कर देंगे हम बाय व्हाट, x, t को रिप्लेस करेंगे बाय x। ओके, अब यहाँ पे भी नीचे t को रिप्लेस कर देंगे x से, t को रिप्लेस करेंगे x से। 1 अपॉन एस स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इट विल बी x रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी e रेज टू माइनस 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे t के जगह पे आ जाएगा x, यहाँ पे 1 प्लस 3x। कुछ अलग नहीं किया मैंने, सिर्फ t के जगह पे किसको ले लिया है, x को। क्यों x को लिया है, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एट x इक्वल टू, है ना, और डायरेक्टली लेते वक्त भी एग्जामिनर ने विथ रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो इसलिए हमने x लेना जरूरी है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, एट x इक्वल टू 1, तो y ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1, e रेज टू माइनस 2 इंटू 1, 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 2, 1 प्लस 3 इज व्हाट, 4। ओके, नाउ दिस इज 4 डिवाइडेड बाय e स्क्वायर। ओके, यू मेक द कैलकुलेशंस इन कैलसी, आंसर आ जाएगा 0.4134। ओके, तो आंसर आपका आता है 0.5413 इज द आंसर। ओके, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में टाइप करना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है 0.5413। आपको जो भी आंसर आए वो लिख देना, एग्जाम में रेंज होती है, उस रेंज में आपका आंसर आ ही जाएगा। ओके।
For solving question number 19, you must know Euler's formula. Euler's formula. एक्चुअली यूलर्स के दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही मैं लिख के देता हूं. e raised to I theta can be written as cos theta plus I sin theta, and e raised to minus I theta जो है cos theta minus I sin theta. तो ये फॉर्मूलेज आपको लगेंगे. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यू विल रिक्वायर दिस फॉर्मूला. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू I phi t निकालना है. तो सबसे पहले e रेज टू I phi t जो है इसको मैं क्या कर सकता हूं, e रेज टू I phi t को बाय यूलर्स फॉर्मूला आई कैन राइट इट एज cos phi t plus I sin phi t. Now take Laplace transform on both sides. So Laplace transform of e raised to I phi t will be what? Laplace transform of cos phi t, I being constant बाहर निकलेगा, Laplace transform of sin phi t. So Laplace transform of cos phi t is what? Cos तो से चालूगा, s से, s अपॉन s स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस आई साइन तो कांस्टेंट से चलोगा. कांस्टेंट कौन है? 5 डिवाइडेड बाय प्लस फाइव स्क्वायर है ना. तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में एस प्लस आई इंटू 5. तो एस प्लस आई फाइव को हम एस प्लस 5i लिख सकते हैं और एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर को एस स्क्वायर प्लस 25 लिख सकते हैं. सो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस कैन बी डन यूजिंग मेथड 2 ऑल्सो. दैट इज बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या है? इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी क्या है? ई रेज टू आई फाइव टी है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं ई रेज टू आई फाइव टी इंटू डी टी. अब यहां पे ई रेज टू बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन होगा. तो ई रेज टू क्या होगा? पावर्स में क्या होगा? क्या कॉमन निकल सकता है? टी कॉमन निकल सकता है, डी टी. और अंदर क्या आएगा? 5i माइनस एस, 5i माइनस एस है ना. अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म? तो ई रेज टू 5i माइनस एस डिवाइडेड बाय टी का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट इज 5i माइनस एस. लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. आई विल पुट द लिमिट्स. e raised to infinity. Okay, I'll do it another way. यहां पे अलग तरीके से करता हूं मैं. यहां पे क्या होगा? एक स्टेप बढ़ा देता हूं. 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी प्लस ई रेज टू आई फाइव टी है उसको 5i बोल सकते हैं डी टी. ओके, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे टी कॉमन ले लेता हूँ. तो माइनस साइन चला गया, टी चला गया, क्या रहेगा? एस. यहाँ पे माइनस साइन चला गया तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे 5i रहेगा. ओके, इनटू डी टी. ओके, नाउ इंटीग्रेट. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेज टू माइनस एस माइनस 5i इंटू टी. लिमिट्स, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? इसका ही कोएफिशिएंट माइनस एस
माइनस 5i, है ना, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, इधर t की जगह पे इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी इंटू कुछ भी कर लो इन्फिनिटी विद अ माइनस साइन, तो ये होता है e रेस टू माइनस इन्फिनिट। ई रेस टू माइनस इन्फिनिट क्या होता है लेकिन 0, तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी 0 ही होता है। अपर लिमिट हो गया 0, ओके, माइनस लोअर लिमिट जैसे ही यहाँ पे t के जगह पे 0 डालोगे, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, e रेस टू 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ s माइनस 5i, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन s माइनस 5i इज द आंसर। लेकिन ये ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। s माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या है, 1 अपॉन s प्लस 5i, तो s माइनस 5i को हम s प्लस 5i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो s माइनस 5i इंटू s प्लस 5i आई गेट s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड ऊपर आ जाएगा s प्लस 5i। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू गेट द आंसर, s प्लस 5i डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25। Laplace transform of f of t is given by the function। ये एक्चुअली उन्होंने डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख के दिया है, दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन शोन बिलो इज गिवन बाय व्हाट। सो इट वाज आस्क्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट 2015 फॉर 2 मार्क्स, वेरी इजी क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला भी दे दिया एग्जामिनर ने। तो एफ ऑफ एस, of course we call it as Laplace transform of f of t, and by definition of Laplace transform it is what, it is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या किया, f of t यहाँ पे लिखा, e raised to minus st यहाँ पे लिखा, तो इंटरचेंज हो गया, तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और आगे चल के क्या रहेगा इन्फिनिटी t के लिमिट्स। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 0 टू 1, नेक्स्ट टर्म विल बी 1 टू इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज। f ऑफ t का वैल्यू बिटवीन 0 टू 1, f ऑफ t इज व्हाट, इट इज 2, हियर इट इज 2, एंड हियर f ऑफ t इज व्हाट, इट इज 0। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे e रेज टू माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, दिस एंटायर टर्म इज गोइंग टू बिकम 0। यहाँ पे 2 बिंग कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल 0 टू 1 e रेज टू माइनस एस टी डी टी। ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाई टी का जो कोएफिशिएंट है माइनस एस उससे डिवाइड कर दो, लिमिट 0 टू 1 डाल दो। नाउ आई विल अप्लाई लिमिट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एस टी के जगह पे 1 डाल दिया अपॉन माइनस एस, लोअर लिमिट टी के जगह पे 0 डाल दो, ई रेज टू 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एस। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे माइनस एस है, यहाँ पे माइनस एस है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। 2 एज इट इज रखो, ई रेज टू माइनस एस इंटू 1 को मैं ई रेज टू माइनस एस लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या है ये माइनस एस है, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, ई रेज टू 0 क्या है 1 है, और नीचे आ जाएगा एस। अब एस जो है दोनों तरफ है, 2 एज इट इज, ओके। मैं क्या कर देता हूँ, एस डिनोमिनेटर में है, दोनों तरफ सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, एस लिख लेता हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, +1 पहले लिखता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये माइनस साइन ऊपर लेके जाता हूँ, माइनस ई रेज टू माइनस एस। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे -2 ई रेज टू माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। तो ये ऑप्शन का आपको कौन सा नजर आ रहा है, सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो जस्ट बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें और एक प्लस पॉइंट क्या है, डेफिनेशन किसी को याद भी नहीं है तो एग्जामिनर ने दे दी है, क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दे दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे
f of t is a function defined for all t greater than 0. Its Laplace transform is defined, f of s is defined as. तो ये डेफिनेशन है सिर्फ, बहुत आसान क्वेश्चन. f of s यानी Laplace transform of f of t is defined by what? It is integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. This is actually definition of Laplace transform. Definition of Laplace transform. So option B is correct. Okay. Consider the function f of x equal to 2x cube minus 3x square in the domain. This is closed interval minus 1 comma 2. The global minimum of f of x is what? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ. गिवन पहले मैं लिख लेता हूँ. गिवन जो है वो क्या है? f of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये गिवन है. ओके. तो मुझे इसका ग्लोबल मिनिमम यानी एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है. ग्लोबल कोई दूसरा नाम है, एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है. इट इज अंडर क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा 2. ठीक है. ये माइनस 1 कॉमा 2 का मीनिंग क्या है? माइनस 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है और उसके अंदर जितने भी नंबर्स है वो सारे इंक्लूडेड है. तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स लगेंगे. स्टेप 1 में आप क्या करना, f डैश ऑफ x निकालना और उसको इक्वेट कर देना 0 को. अब f ऑफ x जो है उसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ. 2x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 0. इसमें से 6x कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या है? 6x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 0 कॉमा 1 आ गया. अब 0 और 1 यहाँ पे आइदर मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है. वो चेक करने के लिए आ जाता है मेरा स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या कर देते हैं मैं आपको समझाता हूं. स्टेप 2 में आप सबसे पहले फाइंड करोगे f डबल डैश ऑफ x. तो f डबल डैश ऑफ x क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ले लो f डैश ऑफ x का. 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x माइनस 6x का डेरिवेटिव 6. उसके बाद में आप x इक्वल टू 0 f डबल डैश ऑफ 0 फाइंड करोगे. f डबल डैश ऑफ 0 तो इट विल बी 12 इंटू 0 माइनस 6. तो आंसर आया माइनस 6 विच इज लेस देन 0. ये f डबल डैश ऑफ 0 इज लेस देन 0 आया. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो है मैक्सिमा आकर होगा. मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0. f डबल डैश ऑफ नेक्स्ट आप क्या करो? 1 फाइंड करो. तो 12 इंटू 1 माइनस 6. 12 1 द 12, 12 माइनस 6 क्या आएगा? ओनली 6. 6 इज ग्रेटर देन 0. ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आएगा. मिनिमा एट x इक्वल टू 1. ऐसा इसका मीनिंग होता है. मतलब x का वैल्यू जब 0 है तब हमें मैक्सिमा मिलेगा और x का वैल्यू 1 है तब हमें मिनिमा मिलेगा. लेकिन मुझे सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना है. मुझे क्या पूछा है? ग्लोबल मिनिमम पूछा है. मतलब मेरा इंटरेस्ट मिनिमम में ही है. तो स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा? स्टेप 3 में टू फाइंड ग्लोबल यानी एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स 3 केसेस में आ सकता है. ठीक है. तो मैं कंसीडर करूंगा वो 3 केसेस. तो -1 और 2 के बीच में वो केसेस रहेंगे. पहला एट x इक्वल टू -1, दूसरा एट x इक्वल टू 1 क्योंकि 1 जो है वो -1 और 2 के बीच में आता है, और तीसरा एट x इक्वल टू कौन सी वैल्यू? एक्सट्रीम वैल्यू 2. तो इन 3 केसेस में मैं चेक करूंगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू.
तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 2x³ माइनस 3x² है। तो एफ ऑफ -1 क्या रहेगा, 2 इंटू -1³ माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर। तो -1³ -1 ही होता है, 2 इंटू -1 -2, -1² +1 होता है, और यहाँ पे कौन आएगा -3। -2 -3 क्या आ गया, -5 आंसर है। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को देता हूँ। एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 क्या रहेगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डाल देता हूँ, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 क्यूब इज 2, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 3 with a minus sign. 2 minus 3 is -1. Call this as 2. Now at x equal to 2, तो f of 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 होता है, 8 2 आएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, 16 minus 12 is what, 4. Call this as equation 3. From 1, 2 and 3 मिनिमम वैल्यू कौन है, मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन है, 4 है, -1 है या -5 है, -5 है। एफ ऑफ एक्स from 1, 2 and 3 at x equal to 1, sorry, x equal to -1, at x equal to -1 f of x, that is f of -1 is equal to what, -5 is global minimum. So this is my final answer. So global minimum of f of x is -5. -5 is the answer. Okay. This is one more very easy question. Laplace transform of cos omega t is what? ट्रिक मैंने बताया, cos स तो s से चालू करो, s डिवाइडेड बाय cos है सिर्फ, तो बीच में प्लस साइन, s² प्लस t का कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर। ये cos हाइपरबोलिक होता तो बीच में सिर्फ माइनस साइन आती। तो ये आसान सम था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, solution of Laplace equation. Laplace equation having continuous second order partial derivatives are called what? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये इक्वेशंस कैसे नजर आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इट इज डाबा स्क्वायर फाई अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर फाई बाय डाबा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे। तो अगर ये 2D में है तो आप यहाँ से डाबा स्क्वायर अपॉन ये फाई कॉमन ले सकते हो, अंदर आएगा डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर, डाबा स्क्वायर अपॉन डाबा वाई स्क्वायर। ये जो टर्म है आप इसको बोल सकते हो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। तो ये जो है इसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, आई नीड टू फाइंड Laplace transform of e raised to 2t sin phi t। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin phi t का Laplace transform फाइंड कर लेते हैं। sin phi t का Laplace transform क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, सॉरी sin तो 5 से शुरू होगा, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ये जो आंसर है इसमें s विल बी रिप्लेस बाय e रेस टू 2t है ना, तो s माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे, s रिप्लेस बाय s माइनस 2। तो 5 डिवाइडेड बाय s की जगह पे मैं s माइनस 2 लिख देता हूँ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 है, s माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, s स्क्वायर माइनस 2 2 4 s प्लस 4 प्लस 25।
सो आंसर आ गया. इट इज 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4s. 4 प्लस 25 इज 29. ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या? यस. ऑप्शन not A. Yes, A. Option A is correct. Option A is correct. Answer is option A.